Hello students, welcome back to Social Studies class. In our today's class, we are going to study sources of history. In the previous part, that is part 1 of this chapter, we studied what is history, why we need to learn history, and what are the things we get to know about history. ठीक है, कब हुआ था कोई इवेंट, कैसे हुआ था, वो सब हमें हिस्ट्री से पता चलता है. पर हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट है उसको कैसे पता चलता है अबाउट द हिस्ट्री? थ्रू द हिस्टोरिकल सोर्सेस. तो आज की इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू this chart. With the help of this chart, I am going to teach you this chapter. So let's start. You have to pay attention because this is very important chapter. Okay children, today we are going to study the first chapter of history, the study of history. So before starting the explanation, what do you mean by the term history? What is the meaning of history? History means study of past events. Means from the time when early human beings lived their life till now. From the time when world came into existence till now. तो सब कुछ past के बारे में, right? So it is too lengthy. ठीक है, पहले से लेकर अब तक जो हुआ है that is too lengthy, right? So historians have divided into 3 parts. Okay, इसीलिए historians ने history को 3 parts में divide किया है. Okay, so the first part is ancient history, also called prehistory. Prehistory, ancient history, which has very old events. Okay, the events are very old. Then second division is proto-history. Proto-history means medieval period. Okay, medieval period means middle. Okay, between. And history. History means modern, means recent history. Okay. अभी ये तो कैटेगरी हो गई. अभी ancient period includes history when there was no written. Okay, when there was no written documents made, यानी तब के लोग कुछ लिखते नहीं थे. Means ancient history means very old period when there was no writing. ठीक है, लोग लिखते नहीं थे, वो सीखे भी नहीं थे. So there are no written proofs about ancient history. ठीक है, written evidence हमको नहीं मिलते हैं. फिर नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री, दैट इज मिडल पीरियड, मिडीवियल पीरियड, जिसका हमें थोड़ा बहुत डेटा मिला है. फ्यू रिटन रिकॉर्ड्स कैन बी फाउंड. ठीक है. नाउ मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स रीसेंट. ओके, सो देर आर मेनी रिटन डॉक्यूमेंट्स. I hope you understood. Now, what does history tell? Okay, history हमको क्यों पढ़ना है? History हमें पढ़ना है because history answers the question what happened, when it happened, where it happened, why it happened, and how it happened. Okay, what happened in the past? When did it happen? Where did it happen? वाई एंड हाउ. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं हिस्ट्री से. और हिस्ट्री से हमें अपना प्रेजेंट बेटर समझ में आता है. ठीक है, हमें अपना ओरिजिन, हमारे रूट्स के बारे में पता चलता है. वी गेट टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स, राइट? एंड ऑल्सो वी गेट टू नो अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज. Now we will study the sources. ठीक है, हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है? What are the sources of history?
Okay, history, we get to know about history by reading our textbook, right? But the words in the textbook are also being informed. Okay, information हमें कहीं से मिली है, ठीक है, पब्लिशर्स को, जो बुक्स जो लिखते हैं उन लोगों को प्रिंट करवाते हैं, उनको इंफॉर्मेशन कैसे मिली होगी? थ्रू द सोर्सेस. So there are two types of sources. The first one is archaeological sources and the second is literary sources. What is the meaning of archaeological source? ठीक है, what is the meaning of archaeological source? Archaeological source means the source, the remains found by excavation by archaeologist. ठीक है, ऐसे sources जो excavation के टाइम पे मिले हैं. एक्सकवेशन का मतलब है digging out the ground or we can say upper surface, okay, soil, earth, जो भी आप बोलो. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज है जो हमें जिस प्लेस पे मिलते हैं, ओके, एक्सकवेशन साइट पे हमें मिलते हैं. ठीक है, एक्सकवेशन साइट पे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक्सकवेशन करवाते हैं और उनको ये सोर्सेस मिलते हैं, वो रिमेन्स मिलते हैं. ऐसे प्रूफ होते हैं ये जो पास्ट के लोग पीछे छोड़ गए हो. द रिमेन्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड द पीपल इन द पास्ट दैट वर बरीड डीप अंडर द ग्राउंड आर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेरी सोर्स? लिटरेरी मीन्स रिटन. ठीक है, द सोर्सेज, रिटन सोर्सेज विच वी कैन फाइंड. So what are the written sources? The written sources can be manuscript, books, text, travelers account, it can be biographies. Okay, so हम अभी इसको डिटेल में समझेंगे. So archaeology क्या है? Archaeology is the study where past event is found, where the past is found based on the remains that are discovered during excavation. ठीक है, जो पहले के पास्ट के लोग थे वो लोग काफी सारे ऑब्जेक्ट्स यूज करते होंगे, चीजें यूज करते होंगे जो आज भी है, पर वहां पर ओरिजिनल जगह पर वो नहीं है. दैट इज इनसाइड द ग्राउंड, डीप अंडर द ग्राउंड. तो एक्सकवेशन करवाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सकवेशन में उनको रिमेन्स मिलते हैं. ठीक है, अभी लिटरेरी सोर्सेज है यानी कि रिटन सोर्सेज दैट आर रिटन बाय द पीपल ऑफ पास्ट. ठीक है, वो जो रिटन सोर्सेज है वो बहुत पहले लिखे गए थे. किसने लिखे थे? पीपल ऑफ पास्ट. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है वो हमें किसी ने लिखे हो. ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया हो और उस टाइम पे किसी ने लिखे हो. लिटरली रिटन सोर्सेस मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट्स. ओके, रिटन डॉक्यूमेंट्स, इट कुड बी मैन्युस्क्रिप्ट, इट कुड बी स्टोरीज, इट कुड बी बायोग्राफीज, एनीथिंग. ओके, first we are going to learn all archaeological sources. Okay, so first one is monuments. What is the meaning of monuments? Monuments means old buildings. Okay, old buildings. It could be forts, temples, caves, it could be tombs, houses, etc. ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? इट कुड बी फोर्ट्स, इट कुड बी टेम्पल्स, ओके, इट कुड बी पैलेस. ओके, किंग पैलेसेस में रहते थे, फोर्ट्स में रहते थे. इट कुड बी पैलेस और हाउसेस. ठीक है, दैट ऑल द थिंग्स कम अंडर मॉन्यूमेंट्स. नाउ चिल्ड्रन, वी कैन in the present day we can see some of the monuments which are preserved and which are being cared. Okay, which are that monuments? That are Taj Mahal, okay,
in Agra, Taj Mahal in Agra, Red Fort in Delhi, Meenakshi Temple, etc. Okay, there are lots and lots of example. Then the second remain, okay, second archaeological source is artifacts. What is artifacts? Objects, ठीक है, चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें एक्सकवेशन पे मिले हैं. वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं. इट कुड बी कॉइन्स, इट कुड बी वेपन्स, इट कुड बी टूल्स, इट कुड बी पॉटरी, etc. Okay, and these sources tell us a lot about the history. Okay, ये सारे sources से हमें बहुत सारी information मिलती है. Now the third one is inscription and edicts. Inscription क्या होता है? Inscription are written on hard surface. ठीक है, inscription ऐसे records है that we find from the past on the hard surface, like metal, okay, like bricks, stones. They are carved basically. Okay, they are being carved. Okay, edicts क्या है बच्चों? What is the meaning of edicts? So inscriptions are writings, texts carved on the hard surface like metal, like stones or bricks. Okay, and what are edicts? Edicts are royal orders by king. ठीक है, royal orders, ठीक है, law, instructions, वो सब king जो है वो important orders है, वो भी वो ऐसे लिखवाते थे, right? एंड इस ऑर्डर्स से हमें क्या पता चलता है? वी गेट टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. वी गेट टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, द मैनेजमेंट, द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम. नाउ कॉइन्स चिल्ड्रन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिक्के. कॉइन्स ऑल्सो हेल्प टू नो अबाउट इकोनॉमी. ठीक है, अब तो कॉइन्स मीन्स करेंसी, राइट? अभी कॉइन्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है? कॉइन्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रूलर, कब कौन रूल कर रहा था, इकोनॉमी, विच काइंड ऑफ मेटल इज यूज्ड, वेदर इट इज गोल्ड, वेदर द कॉइन्स आर ऑफ सिल्वर. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. वेदर दे आर ऑफ कॉपर. And also we get to know about information and the image also was kept in the coin. ठीक है, उसका जो इमेज है वैसा भी काफी जगह पर हमें मिला है, जैसे कि कॉइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है, तो ये कॉइन्स के थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. नेक्स्ट इज फॉसिल्स. नाउ व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल्स आर रिमेन्स एंड इम्प्रेशन. ठीक है, इम्प्रेशन यानी कि काइंड ऑफ प्रिंट. आप लोग स्टैंप मारते हो तो प्रिंट हो जाता है ना बच्चों, वैसे ही फॉसिल्स आर इम्प्रेशन एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. ओके, जब कोई हम बोलते हैं कि डेड मैन आर बरीड, राइट? डेड मैन आर बरीड. अभी कुछ तो नेचुरली भी एनिमल्स और प्लांट्स बरी हो गए थे. ओके, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट चेंजेस दैट आर अकरिंग इन द नेचर ड्यू टू वेरियस नेचुरल चेंजेस. तो ये जो रिमेन्स है, ठीक है, जिसमें रॉक्स के बीच में ये सारे को बरी करा हुआ है और इसका जो प्रिंट है दैट आर इम्प्रेशंस. तो फॉसिल्स से हमें पता चलता है अबाउट द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ. ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते. लाइक हम एग्जांपल लेते हैं एनिमल्स.
ठीक है, तो पहले कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो आज हमें देखने को नहीं मिलते। वो कौन से है? एक्सटिंक्ट है, ठीक है, लाइक डायनासोर। ओके, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, हमें उनके बोन्स भी मिलते हैं, इंप्रेशंस मिलते हैं और उसके रिमेन्स मिलते हैं। ऑल्सो वी नो द ह्यूमन बीइंग, हाउ ह्यूमन बीइंग has evaluated, how human beings evolved. They evolved from apes, right? What is the meaning of apes? Monkey. ठीक है, हमें पता है कि we were before our ancestors, long ago, before thousands of years, they were monkeys and then they transformed into human beings. Okay, our structure, our body structure was first as monkey. So that also we came to know through these fossils. Now we will learn about literary sources of history. What is the meaning of literary? Again, literary means written sources, okay, which we have found, which are found written. Now, it has been estimated that humans learned to write only 5,000 years बिफोर। तो पहले उनको लिखना नहीं आता था, राइट? अर्ली ह्यूमन बींग्स डिडंट नो टू राइट, रीड, सो दे ड्रू सम इमेज। फर्स्ट दे ड्रू सम इमेज, राइट? देन दे लर्नड राइटिंग। तो पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स जब उन्होंने सीखा लिखना, तब उन्होंने पहले लेटर्स बनाए होंगे, अल्फाबेट्स बनाए होंगे, लाइक ए बी सी, वी टेल इन इंग्लिश, राइट? वैसे कुछ उन्होंने अल्फाबेट्स बनाए होंगे, फिर उन्होंने कुछ वर्ड्स बनाए होंगे, लाइक बी ए टी, बैट। ओके, ये वर्ड हुआ। फिर उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट फॉर्म की होगी, राइट? दे माइट हैव डेवलप्ड डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड दे माइट हैव डिवाइज्ड लेटर्स एंड मेड द वर्ड्स। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है, सिर्फ उन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट बनाई होगी, वर्ड्स बनाए होंगे, उसके बाद उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस शुरू की होगी, राइट? सो रिटन सोर्सेज आर द सोर्सेज विच टेल अस अबाउट प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री मेनली। ठीक है, तो ये मिडिवियल और एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताता है, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में नहीं बताता। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? मैन्यूस्क्रिप्ट, टेक्स्ट और बुक्स, ट्रैवलर्स अकाउंट। सो व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू मीन्स मैन्युअली एंड स्क्रिप्ट मीन्स द स्क्रिप्ट दे हैव डेवलप्ड। ओके, सो मैन्यूस्क्रिप्ट आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो खुद हाथ से लिखे हुए थे, क्योंकि तब कंप्यूटर, प्रेस, ओके, देयर वाज नो प्रिंटिंग मशीन्स, नो प्रेस, नो वी कैन से इंक और नो सच machines, computers, so they are handwritten records. Okay, and there was a system to record it on leaf. Okay, patte, leaves we can say, because there was no paper. ठीक है, पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसीलिए वो लोग लीफ पे लिखते थे और बार्क पे लिखते थे। ओके, लीफ और बार्क पे वो लिखते थे ऑफ अ ट्री। सो मेनली पाम लीव्स they used to write the manuscript. Now what is written in the manuscript? Manuscript records the history, right? So this manuscript are present currently in museum, monasteries, libraries. They are preserved. ठीक है, उसे संभाला है, उससे बहुत ही केयर उसका किया है, उससे प्रिजर्व करके रखा है। But some of the manuscripts are not present today because मैंने बोला कि पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, लीफ पे वो लोग लिखते थे। So leaves have crumbled, they are eaten by the bugs. ठीक है, they might be eaten by the bugs. इसीलिए मैन्यूस्क्रिप्ट के रिकॉर्ड्स जितने भी सेफ है
वो लाइब्रेरीज, मोनेस्ट्रीज और म्यूजियम्स में प्रिजर्व करके रखे हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें क्या पता चलता है? फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स वी कम टू नो अबाउट द वर्ड्स विच दे यूज्ड, the writing styles of early human beings, the language, etc. we come to know through manuscripts. Now text और books, ठीक है, कुछ लिखावट या कुछ बुक में अगर किसी ने रिकॉर्ड किया है। Text includes religious text and non-religious text. Religious text means text or written things about religion, related to religion, and non-religious means the text which is not related with religion. Okay, so first I will tell you about religious text. So what information we receive from religious text? How people of that time lived, okay, their belief, ठीक है, उनकी श्रद्धा क्या थी, वो क्या मानते थे, उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी, राइट, ये सब हमें रिलीजियस टेक्स्ट में मिलता है। अगेन अबाउट द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, रामायण एंड इन महाभारत, ओके, वी गेट टू नो अबाउट रामायण एंड महाभारत थ्रू रिलीजियस टेक्स्ट, ओके। वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट गीता, Jainangas and Tripitikas. Okay, Tripitikas are texts related to Jainism. Okay, so we get to know about religions, their belief, their practices, and examples are Ramayan, then Mahabharat and Gita. Okay, now non-religious texts, which includes biographies and autobiography. What is the meaning of biography? Biography means when someone writes about the life of some important figure, some important person, okay, some king or some very knowledgeable and powerful person. And what is autobiography? When we ourselves write about our life, जब खुद वो पर्सन अपनी लाइफ के बारे में अपने इवेंट्स लिखता है, ठीक है। नॉन रिलीजियस टेक्स्ट ऑल्सो इंक्लूड्स क्रॉनिकल्स, कोर्ट क्रॉनिकल्स, ओके, ओके, मीन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द किंग्स कोर्ट, ठीक है। तो ये सारे नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ड्रामाज, poems, other various books which are not related to religion, etc. There are few examples given in your textbook. You refer them. Next is traveler's account. What is the meaning of traveler? A person who has came from other place, a person who travels, who moves, okay. So many travelers who visited our Indian subcontinent in the past have given their views about it, have described their experience. Okay, so travelers account क्या है? Account that is very important, that is written by travelers that visited our प्लेस, ओके। ट्रैवलर्स थे जो ट्रैवल करते थे, वो जिस जगह पे होते थे, जाते थे with the purpose of trading, or if they are settling in that same place, they write many things about it, okay, वो describe करते थे। So they used to give information and description. So information and description by travelers is all about travelers account. So many important people of other place, of other country or continent used to visit India. Examples are Megasthenes,
from Greek. He was a Greek ambassador who came to Indian subcontinent during Mauryan Empire, during Chandragupta Maurya's king. Okay, and he gave the book Indica. उन्होंने बुक लिखी है इंडिका, which represents the Mauryan society, which tells us more about Mauryan society. And Chinese travelers also visited. Their names were Fa Hien and Huan Sang. They gave valuable inputs about the culture and economy and society of India during that time. Another important source is oral history. ठीक है, oral history records the events happened when human did not write. ठीक है, वो सिर्फ बोलना सीखे थे, लिखना जब नहीं सीखे थे, वैसे इवेंट्स हमें ओरल हिस्ट्री से पता चलता है ना. व्हाट इज ओरल हिस्ट्री? ठीक है, हिस्ट्री shared from the people to their upcoming, to their young generation. ठीक है, हम बोल सकते हैं. मीन्स हम लोग स्टोरीज काफी ऐसी सुनते हैं. ओके, स्प्रेड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है, यानी ऐसी हिस्ट्री जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द मीन्स ऑफ वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है, जो जैसे दादा ने ग्रेट ग्रैंडफादर ने ग्रैंडफादर को बताया, ग्रैंडफादर ने फादर को बताया और फादर ने हम लोग को बताया. ओके, सीक्वेंस में, लाइक पहले ने उसके बाद की जनरेशन को बताया, उसके बाद ने उसकी बात को बताया. सिमिलरली ऐसे स्टोरी है, ऐसे जो हिस्ट्री है वो पास होती गई. इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. एग्जाम्पल स्टोरीज, सॉन्ग्स यानी हम भजन या कीर्तन बोलते हैं, और एपिक्स. ओके, दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल हिस्ट्री. Okay children, I hope you understood this topic. Okay, and I hope that now you know how historians and archaeologists know about history. ठीक है, सोर्सेस क्या है वो हमें समझ में आ गए. ओके, आपको रीडिंग करना है. रीड द चैप्टर, फुल चैप्टर. रीड पेज नंबर 11, 12 and 13. Okay children, bye, take care.